Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 9 August 2021 and I am teaching you chapter number 6, an ideal house. An ideal house. So let do little recapitulation what we have done in the previous video. So the features of a ideal house are proper ventilation so that the fresh air enter in the house. Second is the sunlight, and then sanitation, and fourth one is the open space. So let's do little recapitulation, and after that I will explain you the fourth feature of a ideal house, that is open space. So ventilation, the free flow of fresh air in and out of a house is called ventilation. And student, green plant planted around the house, that is also very important, because as we know that the plants filter the air. Is it clear? As we know that the plants filter the air, so there should be enough plants around the house also, so that the fresh air enter inside their house. So student, today I am just doing the recapitulation. If you want to see this topic in detail, then you will watch the previous video. Is it clear? Today I am doing the recapitulation. That is the reason in very shortcut I am telling you about ventilation, and if you want to see the detailed video, then you can watch the previous video. Second point is the sunlight. Sunlight is also very important. Sunlight is also very important. Sunlight makes the house bright, and due to the sunlight it kills the germs also. So due to the heat of the sun, what happen? The germs are killed. Okay, see, when the temperature is very high and when the temperature is very cool, in for example, which you have already studied in the previous chapter, food we eat, that in a low temperature germs are not active. Okay, in a low temperature the germs are not active, so we can preserve the food by keeping that food in the refrigerator. Okay, हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में बेटा क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लेस होता है, और इससे क्या होता है कि जो जर्म्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं. इन द सेम मैनर sunlight is very important, because due to the sunlight what happens, it due to the heat of the sun the germs are killed. Okay, so that in your house, the house is, we can say, ideal house if there is enough sunlight enter in all parts of your house, because due to the sunlight, due to the heat of the sunlight, it kill the germs and make your house germs free. Is it clear? And another importance of the sunlight is that, another important of a sunlight is that due to the sunlight, when our body is exposed to, okay, when our body is exposed to sunlight, our body produce vitamin D. Is it clear? When our body is exposed to sunlight, then our body produce vitamin D, and this is very good for the strong bones, and your mineral calcium and phosphorus, that is also required for the strong bones and teeth. Is it clear? So sunlight play a very important role. In this manner, sunlight plays a very important role. Okay, because when the if there is a lack of vitamin D
in our body, then our bones become very soft and it can be break easily also. Okay, if there is a lack of vitamin D in our diet, then what's happen, the bones become very soft and it can be easily broken. So that is the reason sunlight is very important to produce vitamin D in our body. And the next point which we discussed, that is the sanitation. Okay, for example, see student, we always take care of our personal hygiene also. We brush our teeth, we take a bath, we after taking bath we wear clean clothes. Okay, so many things we do to, we comb our hair, we cut our nails. Okay, so many things we do to maintain our hygiene. Okay, in the same manner student, our surroundings are, our house and our surroundings, that should also be neat and clean, then only you will be fit and healthy. See, daily your mother, daily your mother clean the house so that the house is free from the germs. Okay, daily your mother do dusting also, because dust particles are present in the air, and that also, due to the air, that also come inside the house. So daily your mother do dusting also. And even student, in the same manner we should clean our surroundings also. In the same manner we should clean our surroundings also. Okay, there should be no stagnant water in the fields where you are living. Your neighborhood places are also should be clean. No stagnant water in the ground. What is the reason for that? Reason for that is, as you know, that stagnant water is a favorable breeding place for the mosquitoes. So, and as we know that due to the bite of the mosquito, we will suffer with different types of diseases like malaria, dengue. So our surroundings are also be clean, and we should plant more and more trees. Okay, don't cut the tree, and we should plant more and more trees, because as we know that plants, how the air is clean, so plants clean the air, and even we are getting our living gas oxygen from the plants. So plants are the only which clean the air. Now in present time you are listening that lot of pollution, air pollution, because number of vehicles, now in present time number of vehicles moving on the road, अब के प्रेजेंट टाइम में देखो तो बहुत से व्हीकल्स रोड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जिससे स्मोक प्रोड्यूस हो रही है. सो दैट दीज थिंग्स पॉल्यूटेड द एयर, एंड वी हैव ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ हाउस is increased, so we cut a lot of trees and make the land clear for the construction work also. So these are the reason for air pollution. We must plant new trees, because as we know that we are getting our living gas oxygen from the plants, and even plants are only responsible to clean the air. If the number of trees are more, then the rate of air pollution is less. Okay, and see student, every day if you take example of a just average small family, maybe 4 or 5 member of a family, so every day in our day to day activities we are using more than 500 liter water. ठीक है, आप लोग ने ध्यान दिया होगा सबके घर के ऊपर जो है बस सिंटेक्स की जो टैंक आता है 500 लीटर का टैंक होता है, और डेली आप देखते होगे कि आप उस टैंक को, उसमें वाटर को स्टोर करते होगे डेली. इसका मतलब 4-5 मेंबर्स फैमिली में हैं, तो
डे टू डे एक्टिविटीज में लगभग पर डे वी आर यूटिलाइजिंग मोर देन 500 लीटर वाटर। सो इन तो बहुत सा पानी हाउस एक्टिविटीज में यूज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर कुकिंग द फूड है, फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स है, वॉशिंग द यूटेंसिल्स है, घर के बर्तन ये सब दोनों में लोग व्हीकल्स भी साफ करते हैं, ठीक है। सो देर आर मैनी थिंग्स इन विच द वाटर इज यूज एंड व्हेन द वाटर इज यूज इन दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर दैट it become polluted. We cannot use this water again for cooking purpose or drinking purpose. So there is a proper disposal of such type of a water. Lot of water become polluted when it is used in the kitchen also, and the water from the toilets, washroom, so that is also a polluted water. So there should be proper disposal of this type of a water. We can't throw this water in the open surroundings. Again I am telling you, if the water which is used in the kitchen, this water is thrown in the open surrounding, then again it give, due to this what happened, when this stagnant water, these are the best breeding place for the mosquitoes, and due to the bite of the mosquito we are suffering from different types of diseases. So we must take care that the house in which we are living, there is a proper disposal of water. Is it clear? And for this there is a proper pipelines from this water, through the pipelines goes to the water treatment plant, ठीक है। वाटर पाइपलाइन से वाटर कहाँ जाता है बेटा? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, ठीक है। फ्रॉम देयर द वाटर impurities are removed from the water, ठीक है। पर फिर भी हम इस वाटर को बेटा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो वाटर जाता है जहाँ से उससे इम्प्योरिटीज अलग कर दी जाती हैं, फिर भी बेटा हम इस वाटर को कुकिंग या ड्रिंकिंग पर्पस में नहीं यूज कर सकते। सो सच टाइप ऑफ ए वाटर इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? इन द कंस्ट्रक्शन वर्क दिस टाइप ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड, और आप कह सकते हो इन द कल्टिवेशन आल्सो। कल्टिवेशन में जब खेतों में हम लोग फसल लगाते हैं ना बेटा, तो उस समय पहले ग्राउंड में वाटर डाला जाता है, तो आप इस वाटर को उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एंड वाटर पॉल्यूशन को वैसे भी हमें लेस करना है, क्योंकि अगर ये वाटर रिवर्स में चला जाता है या ओशंस में जाता है तो बहुत से मैरीन एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ भी इससे क्या हो रही है? डेंजरस में हो रही है, ठीक है। सो देयर शुड बी ए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वाटर, ठीक है। सीवेज वाटर जो वॉशरूम वाला है, टॉयलेट वाला वाटर है, और जो आपके हाउस के किचन का जो वाटर है, इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। आप ओपन में इस वाटर को नहीं कहीं भी थ्रो कर सकते हो, अगेन इट विल गिव राइज टू मॉस्किटोज, ओके। सो ये हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद ओपन स्पेस। व्हाई देयर शुड बी ओपन स्पेस इन द हाउस? ओपन स्पेस, this is the fourth feature of the an ideal house. First three features, that is the ventilation, sunlight, sanitation, and now the open space, okay. So open space means the house should not be clustered, ठीक है। जब आप लोग हाउस की कंस्ट्रक्शन कराते हो तो इनफ स्पेस होनी चाहिए हाउस में, ठीक है। दैट इज द रीजन आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में, जब भी हम हाउसेस बनवाते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शंस कराते हैं, तो वी फर्स्टली मेक अ स्केच ऑफ दैट हाउस। आर्किटेक्ट से उसका नक्शा बनवाते हैं प्रॉपर, क्योंकि बेटा आपका घर ऐसा होना चाहिए, बहुत क्लस्टर्ड, भीड़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको घर में चलने के लिए फ्री स्पेस नहीं है, ठीक है। तो क्लस्टर्ड हाउस नहीं होना चाहिए। और दैट इज द रीजन, अनदर पॉइंट इज दैट कि इनफ स्पेस होनी चाहिए हाउस में। इतना ज़्यादा सामान भी नहीं होना चाहिए कि आप डस्टिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो कभी कभी होता ना, इतना ज़्यादा सामान
घर के जो हाउस के जो रूम्स होते हैं स्मॉल होते हैं, बट द पीपल केप्ट टू मच थिंग्स इन दैट रूम्स, सो इट बिकम वेरी कंजेस्टेड। ठीक है, वो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। तो ऐसे हाउस में मोपिंग करने में, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, इवन डस्टिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, और डस्ट इधर उधर रहती है जिससे जम्स चारों तरफ हाउस के होंगे आपके। ठीक है, तो आपका हाउस प्रॉपर, रूम्स का साइज ये सब बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए कि आप अपने हाउस में फ्री मूवमेंट आपकी हो सके। ठीक है, ये नहीं कि हाउस की कंस्ट्रक्शन कराई है, रूम्स इतने स्मॉल हैं और आपने एक्सेस में सामान रखा है कि आप उस हाउस को क्लीन भी नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा होगा तो बहुत से जम्स आपके हाउस में होंगे, और जम्स इतने छोटे होते हैं कि बेटा ये आपको दिखाई ही नहीं देते हैं। ठीक है, सो ओपन स्पेस, व्हाट डज इट मीन? what does it mean? It means a house should not be, it means a house should not be so clustered that we cannot move around freely। ठीक है, रूम का साइज, बरामदा, जो आपका कोर्टयार्ड है, आंगन है, तो हाउस की कंस्ट्रक्शन ऐसी करानी चाहिए बेटा कि आप फ्रीली अपने हाउस में मूव कर सको। ठीक है, फ्रीली आप अपने हाउस में मूव कर सको, बहुत कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, ऊपर से आपने बहुत ज़्यादा उसमें सामान भी रखा है, तो ऐसे हाउस में आप प्रॉपर ढंग से क्लीननेस का काम भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जब क्लीननेस का काम प्रॉपर ढंग से नहीं होगा तो आपके हाउस में बहुत से जर्म्स होंगे। इज इट क्लियर? सो देयर शुड बी ओपन स्पेस इन द हाउस। ओके, टू मैनी थिंग्स शुड नॉट बी केप्ट टुगेदर एंड दे शुड बी डस्ट फ्री। ऑलरेडी ये पॉइंट मैंने आपके संग डिस्कस कर लिया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस होने चाहिए, रूम के साइज प्रॉपर होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हाउस में और बहुत कंजेस्टेड है तो प्रॉपर आप क्लीनिंग का वर्क भी नहीं कर सकते अपने हाउस में। ठीक है, क्योंकि उतनी स्पेस ही नहीं होगी तो आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाओगे अपने हाउस की, और आप प्रॉपर क्लीनिंग हाउस की नहीं कर पाओगे बेटा तो आपके हाउस में बहुत से जर्म्स होंगे, और जर्म्स इतने छोटे होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच वी आर अनेबल टू सी विद आवर आइज, जो हमें हमारी नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते। ठीक है, सो दैट इज, ये हो गया ओपन स्पेस। हाउस शुड नॉट बी सो क्लस्टर्ड दैट वी कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली, एंड देन द थिंग्स, too many things should not be kept together and they should be dust free। so ये हो गया ओपन स्पेस का। उसके बाद देखो बेटा एक एक्टिविटी दी गई है कि व्हाट आर द थिंग्स वी विल डू इन द हाउस एंड व्हाट आर द थिंग्स वी विल नॉट। there is a small activity given। first is written sweep and mop the house, regularly। ओके, तो हमें रोज झाड़ू भी लगाना चाहिए, पोछा भी लगाना चाहिए हाउस में। ठीक है, और दिस इज, और आप लोग देखते होंगे कि ये काम आपकी मम्मी लोग रोज करती होंगी रेगुलरली। ऐसा नहीं कि आज किया उसके बाद चलो अब अगले हफ्ते कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। आप एक दिन घर को साफ नहीं करो, देखो आपको लगेगा कितना ज़्यादा, पूरे घर में बहुत ज़्यादा आपको गंदा फील लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रेगुलर करते हैं।
ठीक है, ये नहीं कि आज किया फिर 4-5 दिन छोड़ दिया, नो। तो स्वीप एंड मॉप द हाउस रेगुलरली, दिस वी हैव टू डू। ठीक है, रिमूव ऑल कॉब्वेब्स रेगुलरली, रिमूव ऑल कॉब्वेब्स रेगुलरली। देखो, बहुत से अनवांटेड गेस्ट हैं जो हमारे घर में अपने से ही विजिट कर जाते हैं। जैसे आप लोग कुछ स्मॉल एनिमल्स को हमेशा अपने हाउस में देखते होंगे। ठीक है, जैसे हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, कॉकरोच है, रैट है, लिजर्ड, स्पाइडर्स। तो ये अनवांटेड गेस्ट हैं जो हमारे हाउस में आ जाते हैं। एंड्स भी हैं। सो वी शुड रिमूव ऑल कॉब्स वेब्स रेगुलरली। जो स्पाइडर्स होते हैं वो जाला बनाते हैं, वेब बनाते हैं ना, तो उसको रेगुलर क्लीन करते रहना चाहिए। ठीक है, ये अनवांटेड विजिटर्स हैं कुछ एनिमल्स। आप किसी भी घर में चले जाओ, सब घर में ये मिलेंगे आपको। लिजर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगी, माउस देख लो, किचन के अगल बगल ही घूमते रहते हैं फॉर द फूड, कॉकरोच है। ठीक है, सो दीज आर द सम एनिमल्स, जैसे मॉस्किटोज हो गया, हाउस फ्लाइज हो गई, तो आप इन्हें रेगुलरली अपने हाउस में देखते होंगे। और कीप द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन, कीप द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन्स। ओके, जो गार्बेज होता है, घर का कूड़ा होता है, अनवांटेड वेस्ट होती है जो हमारे यूज की नहीं होती है। ठीक है, इफ यू केप्ट दैट गार्बेज इन द डस्टबिन देन दैट गार्बेज शुड बी कवर्ड। अगर वो कवर्ड नहीं होगा तो उसमें बहुत से जर्म्स होंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बता रखी है कि जर्म्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको देख नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसे अगर यू केप्ट द गार्बेज इन द डस्टबिन एंड द डस्टबिन इज ओपन, देन व्हाट्स हैपन ड्यू टू दिस, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, और कभी भी बेटा डस्टबिन में खाना नहीं फेंकना चाहिए। ईटिंग आइटम्स डोंट थ्रो इट इन द डस्टबिन, क्योंकि आप ईटिंग आइटम्स को डस्टबिन में डाल देते हो और इससे बहुत से एनिमल्स डाई ड्यू टू दिस। होता क्या है कि आप लोग डस्टबिन में सारी चीज़ें डालते रहते हो, बाई चांस कोई ग्लास ब्रेक हो गया शीशे का, आपने डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, कोई आयरन पार्टिकल्स है, लोहे के कोई टुकड़ा है, आपने उठाया डस्टबिन में डाल दिया। आप सोचोगे कि अब इस डस्टबिन को हम प्रॉपर इसकी डिस्पोजल बाहर कराएंगे, उसी में आप ईटिंग आइटम्स भी डाल रहे हो। तो व्हेन यू थ्रो दिस गार्बेज इन द ओपन, जब आप इस गार्बेज को ओपन में थ्रो करते हो और उसमें फूड पार्टिकल्स भी हैं, तो बहुत से बेटा एनिमल्स भी इससे डाई कर जाते हैं, बिकॉज दे आर एनिमल। सो दे दीज एनिमल ड्यू टू द फूड, अब वो फूड है, आपने उसमें ग्लास भी डाल दिया, आयरन पार्टिकल्स भी डाल दिए, तो एनिमल्स बाई चांस ऐसे फूड को ईट करेगा तो वो ग्लास उसके बॉडी में चला जाएगा, शीशा या जो आयरन पार्टिकल्स आपने फेंके, हो सकता है वो खाना खा रहा है और उसके स्टमक में चला गया। तो ऐसे में वो ड्यू टू दिस रीजन आल्सो मैनी एनिमल्स डाई। तो बेटा जो आपका डस्टबिन होता है, डस्टबिन में कभी ईटेबल आइटम्स नहीं डालनी चाहिए, ये हमेशा याद रखो। बहुत से एनिमल्स मर जाते हैं हम ड्यू टू आवर एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। अगर आप फूड है तो फूड अगर आपको फेंकना है तो एक सेपरेट डस्टबिन रखिए, फूड के लिए आप सेपरेट डस्टबिन रखिए और अदर गार्बेज के लिए डिफरेंट डस्टबिन रखिए, बिकॉज इफ यू थ्रो द फूड आल्सो इन द सेम डस्टबिन, सो ड्यू टू आवर दिस एक्टिविटी मैनी एनिमल्स आर डाइंग। बहुत से एनिमल हमारी इस एक्टिविटी की वजह से भी मर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एनिमल्स हैं, वो फूड खाने के चक्कर में, और उसी में शीशा गिरा होगा, लोहा गिरा होगा, उस एनिमल को पता ही नहीं चलेगा, वो फूड के खाने के लिए जब करेगा तो वो उसके बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द रीज़न बेटा वी शुड टेक केयर। इसीलिए बोलते हैं डस्टबिन कवर्ड होना चाहिए और डस्टबिन भी सेपरेट होना चाहिए फॉर द ईटिंग थिंग्स इफ यू एंड फॉर द अदर टाइप ऑफ ए गार्बेज ऑफ द हाउस। सो डिफरेंट डस्टबिन होने चाहिए एंड दैट डस्टबिन शुड बी प्रॉपर
कवर्ड, और वो डस्टबिन क्या होता है, प्रॉपर कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस सम की वर्ड्स विच आर गिवन इन योर बुक। Ideal, so standard of perfection, standard of perfection, standard of perfection or excellence। ठीक है, सो व्हाट इज एन आइडियल हाउस, स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन और एक्सीलेंस, और ये ऑलरेडी पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कोई भी हाउस एन आइडियल हाउस तभी होगा जब उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, वेंटिलेशन होगी, प्रॉपर सनलाइट इंटर कर रही होगी हाउस में, थर्ड है प्रॉपर सैनिटेशन है, एंड नेक्स्ट है ओपन स्पेस होनी चाहिए, बहुत कंजेस्टेड हाउस नहीं होना चाहिए कि आप फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो that is the reason that type of a house is known as a ideal house। Then next is the standard of perfection or excellence, means there should be proper ventilation, sunlight, proper sunlight enter in their house, sanitation and open space in the house। Next is ventilation, the provision of fresh air in room, building, एक्स्ट्रा। सो वेंटिलेशन मीन्स होता है द एंट्री ऑफ द फ्रेश एयर इन द रूम या इन द हाउस भी बोल सकते हो, या तो बिल्डिंग्स। ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग भी है, वहाँ ऑफिस वर्क चल रहा है, जैसे आपके स्कूल्स हैं, स्कूल्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं ना, क्लासरूम्स होते हैं, देखा ना आपने बेटा, स्कूल में, स्कूल क्या है, बिल्डिंग्स है, और उसमें क्या होते हैं, क्लासरूम वेयर यू कम टू स्कूल फॉर द स्टडी पर्पस। तो आप देखते होगे कि आप जिस क्लास में बैठते होगे वहाँ इनफ नंबर ऑफ डोर्स होंगे, प्लेंटी ऑफ विंडोज होंगी। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन भी, आप एक फैन होता है सीलिंग फैन जिससे आपको हवा मिलती है, और एक एग्जॉस्ट फैन भी होता है, ठीक है, जो हॉट एयर को आउट कर देता है। तो ऐसे एग्जॉस्ट फैन भी आप लोग देखते हो आपकी क्लासेस में हैं। सो एंड इनफ विंडोज हैं आपकी क्लासेस में जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। बाई चांस आप ऐसी क्लास में बैठे हो जहाँ पे विंडो ही नहीं है, तो आप इतना सफोकेशन होगा, आपको एक घुटन जैसी लगेगी उस क्लास में। ठीक है, और बहुत हॉट लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी आपको फील होगी। ठीक है, इफ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप बैठ ही नहीं पाओगे उस क्लास में। बाई चांस कभी कभी होता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ विंडोज, प्लेंटी ऑफ विंडोज हैं क्लास में। ठीक है, सो मतलब वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, फ्रेश एयर बाहर से क्लास के अंदर आ रही है। ठीक, तो आप वैसी क्लास में बैठ सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी क्लास देयर इज नो विंडो, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, देन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सिट इन दैट क्लास। ठीक है, आपको एकदम घुटन जैसी महसूस होगी कि लगेगा कि एयर एंटर ही नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्म। तो फ्रेश एयर का एंटर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट,
So what is ventilation? The entering of fresh air in and out of the house or a building, that is ventilation. Okay, thank you student. We will continue in the next video.